اراکین اسمبلی کی جانب سے وفاداریاں تبدیل کرنے کا معاملہ، حکومت کا آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ۔ واضح طور پر ہارس ٹریڈنگ میں ارکان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ وفاداریاں بدلنے پر ان ارکان کی نااہلی تاحیات ہوگی یا انہیں دوبارہ انتخاب لڑنے کی اجازت ہوگی؟ عدالت عظمیٰ سے رائے لی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مشاورت، اپوزیشن کی ہر مہم جوئی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کا کسی قسم کی خرید و فروخت میں شامل نہ ہونے کا عزم۔ منحرف ارکان کے خلاف پی ٹی آئی کارکن سراپا احتجاج، مختلف شہروں میں مظاہرے، اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کے باہر لہرا کر احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ پارٹی قیادت کی ہدایت پر کارکن سندھ ہاؤس سے واپس چلے گئے۔ تحریک انصاف کا منحرف اراکین کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ، ہماری سیاست نہیں کہ کسی ممبر کو جا کر ڈرایا جائے، پیر صاحب پگاڑا نے حکومت کی سپورٹ کا واضح اعلان کیا ہے، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر۔ تحریک انصاف مکمل متحد، -1 کی کوئی گنجائش نہیں، اتحادی ساتھ ہیں، سندھ میں گورنر راج کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ارادہ ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ 27 مارچ کو اسلام آباد میں تاریخی جلسہ ہوگا، ریکوزیشن پر اسمبلی اجلاس کی تاریخ دینا اسپیکر کی ثوابدید ہے، منحرف اراکین کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کو کارروائی کا اختیار ہے، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ ترجمان قومی اسمبلی کی اسپیکر اسد قیصر سے منسوب بیان کی تردید، اجلاس آئین اور اسمبلی قواعد کے تحت طلب کیا جائے گا، اسپیکر اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں، ترجمان۔ ملک میں کسی سیاسی تصادم کی کوئی گنجائش نہیں، اپوزیشن نے سندھ ہاؤس کو اسٹاک ایکسچینج بنا دیا، شہباز شریف نے قومی حکومت کا مشورہ دے کر نواز شریف کا بیانیہ پس پش ڈال دیا، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ سندھ کے عوام کا پیسہ ارکان کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، الیکشن ایکٹ واضح ہے کہ کسی ووٹر کو پیسے کے ذریعے نہیں خرید سکتے، قوم ضمیر فروشوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب۔ وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر اسد عمر کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کرنے کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 مارچ تک جواب طلب کر لیا، نوٹس معطل کرنے کی استدعا مسترد، نوٹس جاری کرنا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے ہی نہیں تھا، بیرسٹر علی ظفر کے دلائل۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروبار میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے، صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ اسلاموفوبیا پر قرارداد کی منظوری پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا گیا، اسلامی تشخص اجاگر کرنے کے لیے حکومتی کاوشوں کی تعریف، قائدانہ کردار پر عمران خان کو خراج تحسین۔ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ملک بھر میں شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے، محافل اور نوافل کا اہتمام، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ظالمانہ ہتھ کنڈے، ضلع پلوامہ میں چھاپوں کے دوران مزید 6 نوجوان گرفتار، حریت کانفرنس کا ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں تیزی پر اظہار تشویش۔ یوکرین جنگ پر چین کا روس کی مذمت کرنے سے انکار، امریکی صدر جو بائیڈن کا صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ، روس پر مغربی پابندیوں اور یوکرین کے خلاف فوجی امداد نہ بھیجنے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے اور T20 میچز راولپنڈی سے لاہور منتقل، 3 میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے 29 مارچ کو ہوگا، پہلا T20 5 اپریل کو شیڈیول۔
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 21 मार्च से तीसरा और आखिरी टेस्ट, दोनों टीमों का सीरीज जीतने का मिशन। कल से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस होगी। IBF फ्लाईवेट टाइटल, पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम कल दुबई में बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड से फाइट करेंगे। शारजा में 3 मुल्की T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद, तमाम अजला से खुसूसी अफराद और सिविल सोसाइटी की शिरकत। और कराची में 4 रोजा बैनुल-अक़वामी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, गुलकारों और मौसीकारों ने समा बांध दिया, शायकीन झूम उठे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए PTV न्यूज के साथ। नदिया पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है, फिलहाल अमल दरामद नहीं करेंगे। तफसीलात बताएंगे राना शहजादुल इस्लाम। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में मुतफ़िका फैसला किया गया है कि अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इजलास में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर हुआ और इस बात पर मुकम्मल हम आहंगी है कि तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो बात की जा रही है कि हम बेजा लोगों के रास्ते में रुकावट बनेंगे, किसी को नहीं जाने देंगे, ये महज प्रोपेगेंडा है। सिंध में गवर्नर रूल के निफाज की ये भी बहस करता चलो कि एक जुमले में ऐसा कोई इरादा न था न है। हमारे जो एलाइज हैं, क्या सराहियाँ हो रही हैं, वो छोड़ गए, छोड़ जाएंगे। आप मेरे बयानात उठा के देख लें, तसलसल से मैं कह रहा हूँ कि हमारे एलाइज हमें नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो कौम के सामने है। एक से ज़्यादा लोगों ने बाहर राब्ते भी किए हैं और पैगामात भी हमारे पास आए हैं। तो ये साथ सामने रखते हुए शो कॉज नोटिस के ऊपर, ड्राफ्ट के ऊपर काम जारी था। मैं इस मीटिंग से जाने के बाद इंशाल्लाह आज शाम को शो कॉज नोटिस पे दस्तखत कर दूंगा और वो शो कॉज नोटिस इशू कर दिए जाएंगे और उसमें से जो अपने अपने फैसले के ऊपर ज़ाहिर नजरसानी करना चाहता है वो शो कॉज के जवाब के अंदर जो है वो आ जाएगा। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। वजीर इत्तलात ने कहा कि सिंध हाउस में बंद अरकान असम्बली को रहा किया जाए। हमने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया है कि आप बता दीजिए कि हॉर्स ट्रेडिंग आइन अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि ये लोग जो भी डिस्क्वालीफाई होंगे क्या ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे या ये ताउम्र बैन जो है उसमें आएंगे। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने एक सवाल पर कहा कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। उन्होंने कहा कि रेक्विजिशन पर असम्बली इजलास की तारीख देना स्पीकर कौमी असम्बली की सवाबदीद है। राना शहजादुल इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, जिसमें वफादारियां तब्दील करने वाले पार्टी अरकान की कानूनी हैसियत से मुतालिक राय मांगी जाएगी। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि अदालत उज़्मा से राय ली जाएगी कि पार्टी के ऐसे अरकान जो वाज़े तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हों और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनकी वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी। मजीद ये कि मौशी मुफादात की वजह से वफादारियां बदलने पर इन अरकान की नाअहली ताहयात होगी या उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी। वजीर इत्तलात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा की जाएगी। उधर वजीर आजम इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत हुई। ये फैसला हुआ कि अपोजिशन की हर मुहिम जुई का डट कर मुकाबला किया जाएगा। वजीर आजम ने किसी किस्म की खरीदो फरोख्त में शामिल न होने के अज़्म का इयादा किया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में बताया कि हमारी जमात किसी सूरत ज़मीर खरीदने के धंधे में शामिल नहीं होगी। हम हक की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह हमारा मददगार होगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ। शुरका ने आर्टिकल 63A की तशरीह और पार्टी लाहे अमल के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया। नाज़रीन, तर्जुमान कौमी असम्बली ने अपनी मंशा से ऐवान की कार्रवाई चलाने से मुतालिक स्पीकर असद कैसर से मंसूब बयान की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का अहदा आइनी है और असद कैसर अपनी आइनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह हैं। कौमी असम्बली का इजलास आइन और असम्बली कवायद व ज़वाबित में तफवीज़ इख्तियारात के तहत तलब किया जाएगा। और खबर यह भी है कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में PTI के मुनहरिफ अरकान की मौजूदगी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया। जज्बाती कारकुनान ने इस मौके पर नारेबाजी भी की। रुकने कौमी असम्बली फ़हीम खान और अताउल्ला भी कारकुनों के हमराह थे। कारकुनान ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वालों का पीछा किया जाएगा। वाकया तहरीक इंसाफ की क़यादत में नोटिस में आने के बाद कारकुनान को फौरी वापस जाने की हिदायत की गई। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने PTI कारकुनान को तहम्मुल और बुर्दबारी का दर्स देते हुए सिंध हाउस खाली करने का कहा। वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट में कहा कि सिंध हाउस को नया छांगा मांगा बनाएंगे तो अवाम की नफरत का सामना करना पड़ेगा। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए लोगों के जज्बात से खेलना बंद किया जाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम खरीदो फरोख्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। कारकुनान को तलकीन की कि कानून हाथ में ना लें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये इमरान खान की जमात है। अपने पांव पे खड़े होंगे, अवाम को अपना बाजू बनाएंगे, अपने किसी अदारे की तौहीन नहीं करेंगे। हम आपकी तरह के घटिया नहीं है। फौज हमारे सर का ताज है, हमारी अदलिया हमारे एहतराम और हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है। इमरान खान के नाम पे जो लोग वोट लेके आए हैं वो 15 करोड़ 20 करोड़ में बिकते हैं। हम अपने वर्कर के साथ खड़े हैं, लेकिन उनसे ये भी कह रहे हैं कि आपने कानून का एहतराम करना है, किसी ने कानून को हाथ में नहीं लेना। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा, आपने सुना और आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे कि PTI के हर रुकन की सीट इमरान खान का अमानत है। वोटर्स ने राजा रियाज से इस्तीफे का जायज मुतालबा किया है। अपने ट्वीट में वजीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि राजा रियाज का एक वोट अवाम के लाखों वोटों की बदौलत है। वजीर ममलकत ने राजा रियाज के वोटर की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी अपने ट्विटर पर अपलोड की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनों ने PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज किया है। तफसील बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। इस्लामाबाद में सिंध हाउस के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लोटे लहराते हुए नारेबाजी की और सिंध हाउस में मौजूद अरकान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तहरीक इंसाफ के वोटों से जीतने वाले अरकान असम्बली ज़मीर फरोशी और लोटा करेसी के मुर्तकब हुए हैं। अवाम अपने वोटों में इस ख़यानत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। में आज हम लोग का रैली एहतजाज करने का मकसद ही सिर्फ यही था कि जो काली भेड़ें हैं पार्टी के अंदर, इनको बेनकाब करना है और इनकी साजिशों को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। कोयटा, हरनाई, शकरगढ़, हैदराबाद, फैसलाबाद और जड़ावाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करते हुए इनके सियासी और समाजी बाइकाट का ऐलान किया। PTI के कारकुनों ने खवातीन की मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाली MNA वजीहा अकरम के घर के बाहर नारेबाजी की और घर के बाहर लोटे रख दिए। फैसलाबाद के जिला कौंसल चौक में PTI कारकुनों ने MNA राजा रियाज की तस्वीरें उठा रखी थीं, जिस पर ज़मीर फरोश जैसे नारे दर्ज थे।
फैसलाबाद में मुकामी अरकान असम्बली ने मुजाहरे की क़यादत की और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हर सूरत खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। नाज़रीन, सियासी ब्लैकमेलिंग के खिलाफ पेशावर में PTI वर्कर्स ने एहतजाज किया और इस अज़्म का इजहार किया कि नए पाकिस्तान की जिद्दोजहद में इमरान खान के शाना बशाना रहेंगे। साजिद अख्तर से तफसील जानिए। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर जमा ये कारकुन तहरीक इंसाफ हुकूमत से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान पर अदम इत्तेमाद की तहरीक के बदले अवामी इत्तेमाद का मुंह बोलता सबूत है। पेशावर में PTI के कारकुनों ने मुल्क में जारी सियासी कशमकश में चांगा मांगा की सियासत को मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान सियासी माफिया का मुकाबला मर्दाना वार कर रहे हैं और जमहूरी और इखलाकी उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे जो मुनहरफ मेंबरान कौमी असम्बली है उमूमन और पेशावर से ताल्लुक रखने वाले नूर आलम साहब खुसूसन जो कि मुनहरफ हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट के ऊपर MLA बने हैं, तहरीक इंसाफ और इमरान खान की वजह से जिसको वोट मिला है, आज जो है वो बेज़मीर, आज वो जमीर फरोश लोग जो है बिक गए हैं, करोड़ रुपयों की दाम उनकी लग गई है, उनके खिलाफ हम निकले हैं। हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि अगर इनमें इतनी गैरत है, अगर इनका ज़मीर जागा है, तो सबसे पहले इस्तीफा दें, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मुंतखब हुए, इनको तकरीबन 71,000 वोट मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बोसीदा सियासी रवायात को अदम इत्तेमाद के साथ दफन करने पर जोर दिया और कहा कि इमरान खान अवाम के इत्तेमाद पर इक़्तिदार में आए हैं। नोटों पर बिकने वाले अरकान अपोजिशन के इमाम पर तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मुश्तहिल कारकुनों ने इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में नारेबाजी की और अरकान असम्बली की खरीद और फरोख्त में मुलविस सियासी माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। इमरान खान की वजह से आए हो और उसको भी जो है ना उसके खिलाफ जा रहे हो। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और इंशाल्लाह रहेगा। शहर इक़्तिदार के सिंध हाउस में जो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था, MNA जब वहाँ तारीख याद रखेगी, नूर आलम खान, राजा रियाज तारीख याद रखेगी। कारकुनों का कहना है कि तहरीक इंसाफ नजरिए और मंशूर का नाम है जो किसी सियासी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगी। PTI के मुश्तहिल कारकुनों ने आखिर में अपने वोट का सौदा करने वाले अरकान कौमी असम्बली को अवामी अदालत में सजा देने का मुतालबा भी किया। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। ऑपोजिशन ने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत को मशवरा देकर नवाज शरीफ का बयानिया पसे पुश डाल दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज का फैसला नहीं हुआ, ताहम समरी पेश कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। मुल्क में किसी सियासी तसादम की गुंजाइश नहीं, नाराज अरकान वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27 मार्च को वज़ीर आज़म सबसे बड़ी रैली से खिताब करने जा रहे हैं। 24 से लेकर 3-4 तारीख तक ये 10 दिन जो हैं पाकिस्तान की सियासत की बहुत गहमा गहमी के दिन हैं। हम पे काफ़ी ज़िम्मेदारी हैं सिक्योरिटी की। जिस तरह आसफ जरदारी ने ख़त लिखा हुआ है अपने अपने मेंबरों को वो आएँ, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ख़त लिखा हुआ है कि उनके आने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन ये वोटिंग हो, वोटिंग किस दिन होगी ये स्पीकर साहब फैसला कर सकेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का बयानिया पसे पुश डाल दिया है। हम चाहते हैं कि ये बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से हम रास्तों का और जलसेगाह का तयन कर लें। ये मेरी तरफ से आज उनको पेशकश है। अलग अलग जलसे और रास्तों का तयन किया जाए, क्योंकि जमहूरियत में तसादम की गुंजाइश नहीं है। जमहूरियत अफ़ाम व तफ़हीम का और जमहूरियत जो है एक दूसरे के लिए रास्ता बनाने और एक दूसरे की बात सुनने का नाम है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि साम्राज्यी सुंडियां तल्फ हो जाएंगी। चाहते हैं जमहूरियत को खुली छूट हो, अवाम आज़ादी से वोट डाल सकें। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि अपोजिशन ने ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद पर मुकद्दम रखा। वफादारियां तब्दील कराने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी सर्कस लगाने वालों को हर मैदान में शिकस्त होगी। हसन तारिक बट से तफसीलात जानिए। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। अपोजिशन ने सियासी मुस्तकबिल के लिए मुल्की मफाद का सौदा किया। ये जो लोग यहाँ पे रोज़ाना सर्कस लगाते हैं ये मानी नहीं रखते, क्योंकि ज़ाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं। इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है
आपने तो अपनी मार्च के ऊपर सिंध के अवाम की तरक्की का पैसा जो जरदारी के फेक अकाउंट्स में जाता था वो पैसा आपने इस्तेमाल किया। क्या ये दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं? ये बात नहीं कर सकते। इनका कौम से, मुल्क से कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो ज़मीरों के सौदागर है और यह ज़मीर फरोश है। उधर झुक जाते हैं, बात नहीं कर सकते। मुराद सईद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जमानी के नतीजे में मुमकिन हुई। हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाएगा। ये इमरान खान की सिर्फ नहीं बल्कि अरबहा मुसलमानों की कामयाबी है और इस पे पूरा आलमी इस्लाम इमरान खान का शुक्रिया अदा करता है और मैं आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि वज़ीर आज़म सियासत नहीं मुल्क के मुस्तकबिल का सोचते हैं। सियासी खानदानों ने पाकिस्तानी अवाम के पैसे से बैरून मुल्क जायदादें बनाई। पैसे की लालच में अरकान का पार्टी छोड़ना काबिल अफसोस है। आइंदा के लिए पार्टी टिकट्स देते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी कहती हैं कि सिंध में लोगों पर मजालिम ढाना पीपल्स पार्टी का कल्चर है। मुझे तो सख्त अफसोस भी है, हैरानगी भी है कि वो लोग जो कि पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन जीत के आए, अब उनको पता नहीं कौन सा ज़मीर जाग गया है कि पैसे की लालच में सिंध हाउस में जाके बैठ गए हैं जरदारी के कदमों में। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे ख़वातीन पे और माइनॉरिटीज़ पे है, क्योंकि ख़वातीन इलेक्शन नहीं लड़ती, इनको पार्टी एक किस्म का तोहफ़ा देती है, टिकट जो इनको मुफ्त में मिलता है, ये रिज़र्व सीट्स की। आप पार्टी को बिट्रे करें, आप पैसे की लालच में पार्टी को छोड़ें। और मुझे ख़ास तौर पे वजिया पे तो सख्त अफसोस है क्योंकि उनको पार्लिमानी सेक्रेटरी की पोजीशन दी गई थी और मैं समझती हूँ कि कुछ शर्म, कुछ हया आनी चाहिए, कुछ मोरालिटी होनी चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि सिंध हाउस को नीलाम घर बना दिया गया है। इलेक्शन एक्ट वाज़ेह है कि किसी वोटर को पैसे के जरिए नहीं खरीद सकते। कौम ज़मीर फरोशों को कभी माफ नहीं करेगी। तफसीलात बताएंगे अनीस सवान। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि आज मुल्क को लूटने वाले तमाम चोर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इलेक्शन एक्ट इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी वोटर को कोई लालच नहीं दे सकते वोट खरीदने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पैसे के ज़रिए। मैं ये समझता हूँ कि अब ये मौका है, इलेक्शन कमीशन के पास ये वक्त आ गया है कि इनको मिसाल बनाएं ताकि इस मुल्क के अंदर जो खरीदो फरोख्त का बाज़ार है, जो जमहूरियत को इन्होंने एक बाजार की लोंडी समझ लिया है कि जिसका मर्जी जो रेट लगाए उसको आप खरीद लें, करोड़ों रुपए की चमक से लगा के, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल का दुश्मन है ये लोग। पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून मलिका बुखारी ने कहा कि बाज़ अरकान अवाम के वोट के तकद्दस को पामाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ज़मीर फरोश मेंबरान असम्बली के खिलाफ आज खुद नोटिस लेना चाहिए। जो सिंध हाउस में हो रहा है उससे क्या सामने आ रहा है कि चेहरे भी वही है, अमल भी वही है, स्क्रिप्ट भी वही है, लेकिन सिर्फ टाइम चेंज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक अहम आईनी इदारा है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोट का मुहाफिज है, जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का मुहाफिज है, उसने वोट के तकद्दुस को बहाल करना है। उसने मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर फरोशी के अमल को रोकना है। इलेक्शन कमीशन में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील ने दलाइल दिए। केस की समाअत 31 मार्च तक मुलतवी हो गई। अनीस सवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं।
और नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your heart. वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में यकसा तरक्की की मंजिलें तस्खीर करता पंजाब. सेहत आमा की सहूलियात के रोशन बाग. 1000 बेड्स पर मुश्तमिल लाहौर जनरल अस्पताल 2 एमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर फेज 1 संगे बुनियाद बदस्त वज़ीर आला पंजाब. सेहत आमा की सहूलियात का नया जहां, इसी का वादा था, यही है नया पाकिस्तान. हुकूमत पंजाब. वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है. मसाजिद में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उलमा इकराम और मुकर्ररीन शब बारात की फजीलत बयान करेंगे. वज़ीर आज़म इमरान खान ने शब बारात के मौके पर कौम और उम्मत मुसलमान को मुबारकबाद पेश की है. अपने ट्वीट में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि हम पर रहम फरमाएं और हमें अमन व खुशहाली से नवाजें. इसी पर देखते हैं ताहिर जाफरी की रिपोर्ट. शब बरात इस्लामी तकवीम के 8वें महीने की 15वीं रात को कहते हैं. ये वो बरकत और रहमत वाली शब है जिसमें आइंदा साल होने वाले तमाम अवामिल का फैसला किया जाता है. मग़फ़िरत और रहमत की रात घरों और मसाजिद में शब बेदारी का एहतमाम किया जाता है. फर्जंदान इस्लाम नवाफिल और तस्बीहात समेत दीगर नफली इबादत अदा करते हैं और मस्जिदों और घरों को खूबसूरती के साथ सजाया जाता है. इस शब मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करके जहन्नुम से निजात और मग़फ़िरत तलब करते हैं. शब बरात में हमारे अमाल बारगाह इलाही में पेश किए जाते हैं और आने वाले साल की ज़िंदगी और रिज़्क़ का हिसाब भी किया जाता है. उलमा कराम का कहना है कि इस रात की फजीलत का तकाजा है कि इस शब खुसूसी इबादत की जाए. ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बरात यानी निस्फ़ शअबानुल मुअज़्ज़म की रात में क़याम किया करो और दिन के वक्त रोज़ा रखा करो. ये वो रात है जब मगरिब के फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक ऐलान करता है कोई मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार, मैं उसे मुआफ़ी अता कर दूँ. है कोई मुझसे बख्शिश का तलबगार, मैं उसे मुआफ़ कर दूँ. है कोई मुझसे रिज़्क़ का तलबगार, मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ. और फजर तक ये सदा रहती है. इस रात नवाफिल की अदायगी के साथ साथ दार फ़ानी से कूच करने वाले अजीज़ो क़ारिब के इसाले सवाब के लिए दुआएं भी की जाती हैं. फजीलत वाली शब में फर्जंदान तौहीद अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर मालिक कायनात की पनाह तलब करते हैं. ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर. शब बारात बरकतों और रहमतों भरी रात मस्जिदों और घरों को खूबसूरती से सजाया जाता है. फर्जंदान इस्लाम नवाफिल की अदायगी करते हैं. नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं आज की रात के हवाले से क्या एहतमाम किए गए हैं. नमूद बताएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और आज रात इबादत के लिए क्या एहतमाम किए गए हैं. जिस वक्त मैं G8 में जो मस्जिद है जामिया मस्जिद नूर में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो आज शब बारात के हवाले से खुसूसी महफिल का इंतज़ाम किया गया है. यहाँ सबसे पहले यहाँ पर नात खानी का महफिल नात का एहतमाम किया गया था. उसके बाद यहाँ पर किरत का जो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मस्जिद में मुख्तलिफ़ जगह हैं वहाँ पर नवाफिल अदा कर रहे हैं, दुआएँ मांग रहे हैं, क्योंकि ये रात मग़फ़िरत की रात है और दुआएँ मांगने की अल्लाह पाक के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी की रात है. इस हवाले से यहाँ पर महफिल का इंतज़ाम जारी है, जबकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में उलमा कराम भी यहाँ पर आए हैं, जो कि आज की रात के हवाले से ख़ासतौर पर सैयद तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं, ताकि लोगों जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बेहतर अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. इसके साथ साथ जो शहर की जितनी भी अहम मसाजिद हैं वहाँ तकरीबन तमाम में ही ऐसी महफिल का अहतमाम किया गया है. और इस अहतमाम के साथ साथ जो ख़ासतौर पर ये जो महफिल है ये सुबह तक जारी रहेगी. लोग यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम भी किया जाए ताकि अगले दिन का जो रोज़ा है उसको सहरी करके जाएं, अगले दिन का रोज़ा रख सकें. जी, शहर की तमाम तर मसाजिद में महाफिल का एहतमाम किया गया है. लोग अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हैं. नमूद मुस्लिम G8 से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया. जी, इसी हवाले से बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से ही हसन तारिक बट ने, हमारे नुमाइंदे. हम उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं. हसन, बरकतों, फजीलतों, रहमत वाली शब का आगाज़ हो चुका है. आप इस्लामाबाद में इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और बताइएगा कि फर्जंदान इस्लाम इसको किस अंदाज में मना रहे हैं. जी बिल्कुल, मैं इस वक्त G61 की मस्जिद गौसिया मैरिया के अंदर मौजूद के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद की इस मस्जिद के अंदर भी जो शब बारात के हवाले से हम अंदर देख सकते हैं कि इबादत, महाफिल जो हैं, जो महफिलें हैं, उनका इनेकाद किया गया है.
اور یہاں پر بھی ملک بھر کی دیگر مساجد کی طرح جو اللہ کی بارگاہ میں جو مغفرت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کیونکہ روایت کے مطابق آج جو ہے وہ اعمال کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے اور اگلے آنے والے سال کے لیے جو رزق ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی جو ہے وہ مذہبی جوش و خروش اور احترام اور عقیدت کے ساتھ یہاں پر بھی جو ہے وہ محفل کا جو ہے اہتمام کیا گیا۔ جی بہت شکریہ حسن طارق بٹ، آپ G61 میں موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں بھی باقی ملک کی طرح محافل اور عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ جو ہیں وہ سر بسجود ہوں گے اور مغفرت کی دعائیں بھی مانگی جائیں گی۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر اسد عمر کو انتخابی مہم میں شرکت پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹس پر 28 مارچ تک جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو معاونت کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ عدالت نے نوٹس معطل کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ نوٹس جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ جسٹس عامر فاروقی نے کہا کہ کیا کوئی بھی آئینی اختیار قانون بنا کر ختم کیا جا سکتا ہے؟ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے خراب موسم کے باعث پاڑا چنار کا دورہ منسوخ کر دیا۔ وزیر اعظم نے پاڑا چنار میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرنا تھا۔ کرم ایجنسی کے عوام کے نام اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ خراب موسم کے باعث انہیں یہ دورہ منسوخ کرنے پر افسوس ہے، پہلی فرصت میں جلد ان کے پاس آؤں گا۔ میں اپنے کرم کے پاکستانیوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ ابھی میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے جو پائلٹس ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ موسم ایسا ہے کہ ہیلی کاپٹر وہاں جا نہیں سکتا، پہاڑی علاقہ ہے، جس طرح کی آندھی ہے تو اس کے اندر ہیلی کاپٹر جا نہیں سکتا، تو اس لیے مجھے آپ سے معذرت کرنی پڑ رہی ہے کہ میں آپ کے پاس آج جلد سے پہ نہیں آ سکتا۔ لیکن میں آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز بھرپور طریقے سے آپ نے یہ بلدیاتی الیکشن میں شرکت کرنی ہے، اور دوسرا کہ انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملے گا پہلے موقع کے اوپر میں آپ کے پاس آؤں گا اور پھر آپ سب سے بات چیت بھی کروں گا، آپ سب سے ملوں گا بھی۔ پاکستان پائندہ باد۔ عدم اعتماد کے جنون میں اپوزیشن جماعتیں تمام آئینی اور اخلاقی حدود پار کر گئیں۔ نمبرز گیم کے لیے کس حد تک گراوٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، رپورٹ دیکھیے۔ اپوزیشن جماعتوں کی سیاسی دھینگا مشتی سے اڑنے والی دھول زمینی حقائق سامنے آنے پر بیٹھنے لگی تو وہ فاؤل پلے پر اتر آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر حکومت کے خلاف شور شرابہ کرنے والے اپوزیشن حلقے پہلے تو ہواؤں میں اڑ رہے تھے، مگر جب بات نمبر گیمز کی آئی تو زمینی حقائق کچھ ایسے نظر آئے کہ مایوسی ان کے چہروں سے صاف جھلکنے لگی اور 172 کا ہنسا ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ حکومتی اتحادیوں کی پارٹی کے اندر مشاورت کو سیاسی نادان اپنی حمایت سمجھ بیٹھے اور آسمان سر پر اٹھا لیا۔ آہستہ آہستہ سیاسی مطلع صاف ہوا تو اپوزیشن سناٹے میں آ گئی۔ حکومت کے خلاف سرگرم ٹولہ نمبر پورے کرنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ سے بھی گریز نہیں کر رہا۔ اس حربے میں ناکامی کے بعد وہ غیر آئینی حرکتوں کی سازش میں مصروف ہیں۔ حکمران جماعت کے اراکین کی خریداری کے لیے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں نیلام گھر سجا لیا گیا، جہاں پی ٹی آئی کے ووٹوں سے منتخب اراکین کے ضمیر کے سودے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی نیک نیتی پر بھروسہ کرنے والے عوام بخوبی جانتے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری اچھل کود احتساب کے شکنجے سے گردن چھڑانے کے لیے ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اراکین اسمبلی کی وفاداریاں خریدنے کے عمل کو عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ عاصم بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن کی دیگر چھوٹی موٹی سیاسی جماعتیں ہارس ٹریڈنگ اور وفاداریاں خریدنے سمیت ہر غیر جمہوری راستہ اختیار کر رہی ہیں۔ اپوزیشن کے اس منفی رویے اور چھانگا مانگا کی سیاست کو پاکستانی عوام نے یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس کے اوپر تو کوئی قانون پاس ہونا چاہیے اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو بندہ جس نشان کے اوپر ووٹ لے کے آیا ہے، عوام نے اس کو منتخب کیا ہے اور وہ حق رکھتا ہے کہ اس کا ووٹ چوری نہ ہو۔ ایک اچھا انسان، ایک خوبصورت انسان، سچا، کھرا، دیانتدار، وہ ایک اس امت کو، اس قوم کو ملا تھا جس نے اپنی لیڈرشپ کا حق ادا کیا۔ عمران خان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ اپوزیشن جو ہے یہ ہے کرپشن کے ماسٹر ہے۔ انہوں نے ساری 30 سال ملک کا خون چوسا غریب عوام کا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے جس طرح کرونا وبا کا مقابلہ کیا اور ملکی معیشت کو قلیل مدت میں دوبارہ اپنے ٹریک پر ڈال دیا، اس کی پوری دنیا معترف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہمارے ملک میں احسان ایک بہت بڑا کیا ہے، جو صحت کارڈ بنایا ہے،
ये हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसमें जो गरीब बंदा अपना इलाज करा सकता है बड़े अच्छे तरीके से। जो हुकूमत ने देर पा इकदाम अपने किए हैं, डैम वगैरह जो बनने, जो 65 के बाद कोई डैम नहीं बना पाकिस्तान में, अब वो शुरू हुए हैं। बाकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये कोई आज के मसाइल तो नहीं है, ये पिछली गवर्नमेंट्स के भी मसाइल हैं और हर दौर में होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में शुरू होने वाले रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे और इस्लामी फलाही रियासत की तरफ तेज़ी से पेशकदमी से खौफजदा होकर अपोजिशन जमातें जमहूरी हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटका रही हैं। अपोजिशन की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द मौजूदा हुकूमत का किसी भी तरह से खात्मा हो, चाहे इसके लिए उन्हें मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की सियासत ही क्यों न करनी पड़े। लेकिन पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हैं और वो दोबारा लंडे बाजार की सियासत करने वालों के झांसे में नहीं आएंगे। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई काबीना के अरकान और मुंतखब नुमाइंदों ने मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि बदकिस्मती से मुखालिफिन ने मुल्की मुफादात को दाव पर लगा दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग से अपोजिशन रहनुमाओं के भयानक चेहरे आवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन ने वोट के बजाय नोट को इज्जत देकर अपनी साख तबाह कर ली। पूरी कौम ने गैर जमहूरी और गैर इखलाकी फेल को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अपोजिशन के हर हथकंडे का भरपूर जवाब देगी। अरकान असेंबली ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से नाइजीरिया के वज़ीर दिफा रिटायर्ड मेजर जनरल बशीर सालेही मिगाशी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन में इजाफे को सराहते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस के तहत अफ्रीकी मुल्कों में पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमात हैं। इंगेज अफ्रीका पॉलिसी के तहत अफ्रीकी मुल्कों के साथ तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार देना खुशाइंद है। इस पेशरफ से नस्ल परस्ती, इम्तियाजी सलूक और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद जैसे चैलेंजेस का मुकाबला करने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं, इसके लिए रवैयों में तब्दीली लाना होगी। उन्होंने ये बात आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कही। तफसील हमें बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए जरूरी है कि कारोबार को आसान किया जाए। उन्होंने कहा कि सनत की तरक्की के लिए सनतकारों की मशावरत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की तिजारती सरगर्मियों से वाबस्ता है। हमें कारोबार में आसानी के लिए मजीद इकदाम करने होंगे। पाकिस्तान की मिडिल क्लास इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के एतबार से सबसे बड़ी है। इट इज़ क्लोज टू 47%। दुनिया भी आपकी तरफ देख रही है और आपको बहुत बिजनेसेस चाहिए। यूथ बल्ज भी आपका है जो बिजनेस में आएगा। औरत जो है उसको भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के एतबार से डिजिटल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। हर अंदाज से लोन्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ। अगेन उन सब के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सबको कि उन्होंने ये इतना काम किया। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा कि माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान हमारा हदफ है और हुकूमत कारोबार में आसानियों के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी इंतहाई ज़रूरी है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर इक़दाम कर रही है। सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन अजफर अहसन ने कहा कि कारोबार में आसानी के लिए मुख्तलिफ महकमों में 113 इस्लाहात की गई हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं
intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ज़हन साजी और राय आमा कायम करने में मीडिया का किरदार अहम है। अहदे हाजिर में टेक्नोलॉजी के फरोग से मालूमात के भाव को रोकना अब मुश्किल अमल है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मौजूदा चैलेंजेस में से एक इंसानी सोच को पुख्ता बनाना है ताकि आने वाली नस्ल अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सके। उन्होंने कहा कि समाजी तरक्की के लिए तासुब से बालातर होकर सोचना होगा। सदर मुमलिकत ने फेक न्यूज़ के मुमकिन असरात का जिक्र करते हुए कहा कि खबरों की अलगार में मीडिया के उसूलों पर कारबंद रहकर ही सही समत का तयन किया जा सकता है। दुनिया की परेशानी है कि हाउ टू हैंडल फेक न्यूज़। फॉर एग्जांपल, फेक न्यूज़ इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर एनीबडी। थिंक टैंक्स को के लिए बड़ा अहम टॉपिक है कि सोचें कि हम अपने बच्चों को इस कैसे उनकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स को मजबूत करें कि वो इसको परख सकें। इफ़ वी वांट पाकिस्तान टू बी प्रोग्रेसिव एंड हैव बी स्ट्रॉन्गर देन अदर कंट्रीज, नंबर एक। नंबर ये कि सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को मुस्तहकम रखने के लिए दूसरों के ख्यालात के नीचे हम पिस ना जाएं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेनेट का इजलास हुआ। वाइस चांसलर ने जामे के मुस्तकबिल के अहदाफ, नए तालीमी प्रोग्राम्स और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। सदर ममलकत ने कहा कि यूनिवर्सिटी आला मयार की तहकीक पर खुसूसी तवज्जो दे और आलमी मयार के मुताबिक मेडिकल प्रोफेशनल्स पैदा करे। अस्पताल, मीडिया और कम्यूनिटी लोगों में बीमारियों से बचाव के बारे में आगाही पैदा करे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस्लामोफोबिया के हवाले से करारदाद की मुत्तफ़क़ा मंजूरी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। इस्लामोफोबिया मगरबी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, जिसका मौसर जवाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दिया और दुनिया को बावर करवाया कि दीन इस्लाम दर हकीकत सलामती और अमन का दीन है। आलमी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशें रंग लाई और अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। लाहौर और पंजाब के दीगर अज़ला में शहरियों ने आज जुम्मतुल मुबारक यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया। मसाजिद में जुम्मे की नमाज के बाद खुसूसी दुआएं मांगी गईं। पाकिस्तान इसको यौम तशक्कुर के तौर पर मना रहे बसलसला तदारुक इस्लामोफोबिया। इस्लाम एक अमन का मज़हब है, भाईचारे का मज़हब है, उसका खुदा न ख्वास्ता दहशत गर्दी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान का एक मुस्तहसन इक़दाम है जो उन्होंने आलमी सतह पर इसको उठाया और जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सराहा और इसको मंजूर किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा हुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के बाद मुस्लिम उम्मा के मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान ने इसमें पहल की है और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और आज पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खुतबात जुमा में इसकी जो है वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया गया है। उलमा ने, हुकूमत का भी, वज़ारत ख़ारजा और जो इसमें शरीक हुआ, ये बेसिकली मैं समझता हूँ उस तरफ आगाज़ है जिससे इंशाअल्लाह ताला अमली इक़दामात भी अब सामने आएंगे और ये जो इस्लाम के हवाले से या इस्लाम को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ा जाता है या इस मुसलमानों पे जो मसाइब आते हैं तो वो ख़त्म होंगे। पंजाब भर में शहरियों ने यौम तशक्कुर के मौके पर सजदा शुक्र अदा किया और इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों को सराहा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उधर बलूचिस्तान में भी इस्लामोफोबिया के हवाले से करारदाद की मुत्तफ़क़ा मंजूरी पर यौम तशक्कुर मनाया गया। वक़ार अहमद की रिपोर्ट देखिए। 15 मार्च अब हर साल जाना जाएगा कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के तौर पर। UNGA की तरफ से इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक रेजोल्यूशन का मंजूर किया जाना पाकिस्तान की अहम सफारती कामयाबी है। Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Islamophobia is creating a division. यौम तशक्कुर मनाने के साथ ये जानना भी जरूरी है कि इस्लामोफोबिया है क्या। हम मुसलमान हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं। रिलीजन के लिए एक अच्छा स्टेप लिया गया है, हिस्ट्री में आज तक नहीं लिया गया। इस्लामोफोबिया के मुकाबले में हमें अपना एक मुतबादिल और जामे बयानिया रखना होगा।
मजबूत बयानियां पेश करने के लिए जज्बातियत के बजाय तहकीक, लॉजिक और रैशनैलिटी के रास्तों को इख्तियार करना जरूरी है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने 23 मार्च की मुनासबत से एक वादा जिंदा रखना है के उन्वान से मिली नगमा जारी कर दिया है। मुसीबत में घबराया नहीं करता। एक वादा जिंदा रखना है, एक वादा जिंदा रखना है, एक वादा जिंदा रखना है, एक वादा जिंदा रखना है। क्या दिन था वो हम में जिस दिन, क्या दिन था वो हम में जिस दिन जीने की तमन्ना जागी थी और हमने किया था अपने आप से एक वादा, वो वादा जिंदा रखना है, वो वादा जिंदा रखना है, एक वादा जिंदा रखना है, वो वादा जिंदा। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि OIC का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। इस तारीख साज मौके पर पाकिस्तान एक मरतबा फिर मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करेगा। मजीद तफसील बता रही हैं सदफ अफसल। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। 10 लाख से जायद काबिज भारतीय फौजी काले कवानीन की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान ने मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर मुसलसल सिफारती कोशिशों से मसला कश्मीर को अक़वाम आलम के सामने उजागर किया। This is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से हक़ इरादियत के हसूल के मुंतज़िर हैं। हम उम्मीद करेंगे कि OIC का ये जो इजलास हो रहा है इसमें वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ भरपूर जो है ये अपना मुजाहरा करेंगे, क्योंकि भारत न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ कर रहे हैं या हमारे जो मजहबी हुकूक है उसको सलब कर रहा है। 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास का बुनियादी मकसद मुस्लिम मुल्कों के माबैन इत्तेहाद व यकजहती, मुआशी तरक्की, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के साथ साथ मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम को इंसाफ की फराहमी है। ख्वाहिश होगी कि वो तबकात ख़ास तौर पर वो कौमें जो कि ऑप्रेसिव सूरत हाल से दो चार हैं, जो कि ऑक्यूपेशन फोर्सेस की जद में हैं, उन्हें इंसाफ मिल सके, बिलखुसूस मकबूजा जम्मू कश्मीर। इस तारीख साज मौके पर पाकिस्तान एक मरतबा फिर मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करेगा। इजलास में कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास भी मुनक्किद होगा। कब तक आलमी बरादरी मासूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर खामोश तमाशाई बनकर बैठी रहेगी? अब वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम मसला कश्मीर का हल और खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम का क़याम यकीनी बनाए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की बात करें तो आपको बताएं कि काबिज भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जिला पुलवामा में छापों के दौरान मजीद 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फौजियों ने तलाशी मुहासरे की कार्रवाइयों में लोगों को हिरासा भी किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कश्मीरियों की मुनसिफाना हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद को दबाने के लिए रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से अपील की कि वो तनाज़ा कश्मीर को हल कराने के लिए इक़दाम करें।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन उमर अब्दुल्ला ने जिला कुलगाम में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मनगढ़ंत और झूठी कहानी करार दिया और कहा कि फिल्म के जरिए बेघर कश्मीरी पंडितों की वादी कश्मीर में अपने आबाई घरों की महफूज वापसी के मंसूबे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़ेर एहतमाम वेबिनार में मुकर्ररीन ने मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक के कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। और कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे, वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन से तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के सदर अमजद नवाज की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें ओवरसीज कन्वेंशन समेत दीगर अहम सियासी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। अमजद नवाज ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़े हैं और वो मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे।